Now we are here to discuss regarding the ionic equilibrium, the important and very important topic of this chapter, ionic equilibrium. So as we know, the word ionic equilibrium means the equilibrium in between the ions and its main component, that is the compound which is known as ionic compound. So before starting this, we should go into the history of that ionic compound, and we should know what are the different type of equilibrium that can be possible in this type of the compounds. We know that there are several compounds in our daily life which we are using, like NaCl is the common salt. We know, like vinegar, acetic acid, both are having ability to produce their ions. Once this NaCl dissolves in water, it produces Na plus and Cl minus ion. If we take the example of sugar, and if we dissolve the sugar in water, means sugar solution in water, here also we are using water. If you see this sugar solution does not having ability to conduct the electricity, means conducting nature of sugar is not there. Sugar solution does not show the conducting nature, whereas this NaCl solution shows conducting nature. Why? It means that in solution this compound produce their ions, and that ions have the ability to conduct the electricity. So the conducting electricity depends on the concentration of ions. Now, according to the formation of the ions in the solution in particular time period, Michael Faraday gave the idea. He published the number of documents regarding this and told that there are certain compounds, कुछ ऐसे compounds होते हैं जो पानी में dissolve होते ही पट से and very fast they dissociate into its own ions. So that compounds which dissociate into ions, that are known as electrolyte as per the Michael Faraday, electrolyte. And these all electrolytes are the ionic compound. We are not supposed to, इसको अगर हम भूलेंगे तो नहीं चलेगा, हमको भूलना नहीं है. These all are the ionic compound. तो वो सारे कंपाउंड्स जो पानी में डिसॉल्व होते ही अपने आयंस बनाते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइट है. बट अगेन अकॉर्डिंग टू देयर नेचर ऑफ formation of ions when dissolved in water, that electrolytes are of two types. Which forms their ions very quickly, that are known as strong electrolyte. That are known as strong electrolyte. Whereas those which forms their ions slowly, that are known as weak electrolyte. So in case of this CH3COH, it produces CH3COO minus and H plus. Slowly, as soon as it dissolves in water, it produces slow H plus and O minus. This CH3CO minus है. But in case of NaCl को पानी में डालते हैं, पट से उसके आयंस बन जाते हैं. ये धीरे धीरे बनाता है. अब इसके सारे के सारे आयंस बनेंगे. इसको हम अगर लिखना चाहे तो ऐसे लिखना पड़ेगा हमारे को NaCl, it produce Na plus and Cl minus. लेकिन इसको अगर लिखेंगे CH3COO H, it produce CH3
COO minus and H plus, but we know that these all are not dissociate at a time, उसी समय नहीं हुए डिसोसिएट, इसलिए इस रिएक्शन में देयर इज द पॉसिबिलिटी दैट द मोमेंट व्हेन देयर इज CH3COOH at that time there is the CH3COO minus and H plus. These ions are in equilibrium with the own compound. There is a probability that the concentration of reactant, this is equal to the concentration of product, and this arise where that is known as the ionic equilibrium. इसको बोलते हैं ionic equilibrium. अब हमारे रोजमर्रा के इसमें हम बहुत कुछ देखते हैं कि एसिडिटी होती है तो स्टमक में HCl प्रोड्यूस होता है, स्टमक के जो वॉल है वो HCl प्रोड्यूस करते हैं, सो दैट HCl इज हेल्पिंग फॉर डाइजेशन. जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इतना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो पट से H प्लस और Cl माइनस आयन बनाने वाला एसिड. अब विनेगर ये जो है CH3COH, ये विनेगर का बहुत बड़ा कंपोनेंट है, मतलब विनेगर ही CH3COH मैक्सिमम कंपोनेंट बनाते हैं इसको. हमको मालूम है कि नींबू खाते हैं हम, उसमें साइट्रिक एसिड होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है हमारे इसमें ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये क्या बोलते हैं इसको आपका टैमरिन, उसमें टार्टरिक एसिड. बहुत सारे ऐसे एसिड्स हैं जिसको हम डेली यूजेस में लेते हैं. बहुत सारे ऐसे बेस है जो हम डेली यूजेस में यूज करते हैं. वॉशिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग सोडा जो है वो बेस है. बट दिस ऑल एसिड्स एंड बेसेस हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर आयंस इन द एक्वस मीडियम एज पर देयर स्ट्रक्चर एंड देयर एबिलिटी. They have been classified into two categories, that is strong electrolyte and weak electrolyte. Several compounds which dissociate slowly. So in some way, some compounds dissociate 20% at a time, some dissociate 5%, 10%, 15%, 100%, 95%. That depends. So according to their dissociation, according to their ionization is forming ions, उनके आयन बनने के इससे, और कौन से कंपाउंड कौन सा आयन बनाएंगे तो कैसे उनको पहचानेंगे. हाउ यू क्लासिफाई द कंपाउंड दैट पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड इज एसिड, हाउ यू कैन क्लासिफाई द पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड एज ए बेस. तो एक अरेनियस एसिड बेस कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. अरेनियस ने एक एसिड बेस थ्योरी बनाई है और वो थ्योरी में ये दिया है कि द कंपाउंड विच प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम, द कंपाउंड विच प्रोड्यूस H प्लस इन एक्वस मीडियम that is acid. The compound which produce H plus in aqueous medium is acid, and the compound which produce OH minus ions in aqueous medium, that is base. Don't forget it. Acid is a compound which produce H plus ion in aqueous medium, and base is the compound which produce OH minus ion in the aqueous medium. This is the Arrhenius acid base concept. If you take the example of acid, maximum, we know that maximum acids are mineral acids. So that can be written as HX. X may be any halogen. So when it dissociates, it produces H plus and X minus. Another example we can take, that CH3COOH, it produces CH3COO minus and H plus. About base, if you take example MOH, we know that when metal oxide dissolve in water, it produce base. We had already discussion in metal and non-metal chapter class 10th. Means in base, every base, maximum base, one of the component is metal. So we can write MOH. It produce M plus and OH minus.
If you take the another example of base is NH4OH, NH4OH, it produces NH4 plus and OH minus. So these are the two examples with these. This is the acid, this is also acid, this is base, this is also base, but two having the different property. This produce H plus ion as soon as dissolved in water, so that's why this is strong. And this part of the example on this part, they are producing H plus ion, OH minus ion slowly, so these are weak. So this point we should remember. ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना है. तो ये HX कोई भी हो सकता है, HCl, HBr, HI, MOH कुछ भी हो सकता है, KOH, NaOH कुछ भी हो सकता है. तो ये एग्जाम्पल है, इसको आपको ध्यान रखना है. एंड दिस एक्सप्लेनेशन इज अकॉर्डिंग टू द Arrhenius acid base concept. So once again I am writing here the Arrhenius acid base concept. But after that, one scientist whose name is two people work together, Lowry and Bronsted. According to Arrhenius theory, Arrhenius theory के बारे में भी उन्होंने पढ़ा, और Arrhenius theory के बारे में पढ़ने के बाद उन्होंने फिर एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया, हम बोल सकते हैं. What was that concept? इसमें क्या है, लोरी एंड ब्रोंस्टेड एसिड बेस थ्योरी. इनका क्या कहना था, बहुत इजी है. इसमें सिर्फ इसको ध्यान रखना, एक ही पॉइंट को ध्यान रखना है. लोरी ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट डिपेंड्स ऑन ओनली H प्लस आयन. इनका क्या कहना है कि H प्लस आयन देने वाला एसिड और H प्लस आयन लेने वाला बेस. H प्लस आयन, दिस थ्योरी बेस्ड ऑन ओनली H प्लस आयन. जो एक्सेप्ट करता है H प्लस आयन वो बेस, और जो डोनेट करता है, मतलब जो रिलीज करता है, वो हो गया एसिड. जो H प्लस आयन रिलीज करेगा वो हो गया एसिड. जो H प्लस आयन देगा वो एसिड. अब इसमें समझ में आता अपने को कि HX इज द स्ट्रॉन्ग एसिड विच गिविंग H प्लस आयन. तो ये आधा कंसेप्ट हो गया, आधे कंसेप्ट से ये बनाया हुआ. इसका कंसेप्ट कैसे है, H प्लस आयन जो देगा वो एसिड, और जो H प्लस आयन लेगा वो बेस. अब ये एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी ऐसा एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसा NH3 plus H2O. We know this NH3 having basic property, water having both the component H plus and OH minus. अब इस रिएक्शन में मान लो दिस रिएक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम एंड वी आर गेटिंग NH4 plus NH4 plus and OH minus. थोड़ा सा ध्यान से समझो, इसमें क्या हो रहा है, NH3 produce NH4 plus. This breaks as H plus and OH minus. So H plus comes here, so we are getting NH4 plus. तो इससे क्या बना, NH4 plus बना. और H2O से क्या बना, H2O से हम इसको दूसरे कलर से लिखते, इससे क्या बना, OH minus. इस रिएक्शन को केयरफुली अगर देखेंगे तो NH3 is producing NH4 plus, means accepting electron. So NH3 accept electron, so NH3 is base from this side. This is forward reaction, huh? We are talking about forward reaction. NH3 accepting electron, so it is base, and H2O donating H plus. H2O donating,
रिलीज कर रहा है ना, H2O रिलीज कर रहा है, रिलीज किया और OH बना, तो यहां पर हो गया वो एसिड। इसका मतलब हम इसमें लिखते समय लिखेंगे कि दिस इज एसिड, अब दिस इज बेस एंड दिस इज एसिड। अब इसी रिएक्शन को हम अभी बैकवर्ड रिएक्शन में पढ़ते, मतलब रिटर्न इस रिएक्शन, थोड़ा सा ध्यान दें। नाउ NH4 प्लस फॉर्मिंग NH3 मीन्स रिलीजिंग H प्लस, NH4 प्लस का NH3 हो रहा है, तो रिलीजिंग, जो रिलीज करता है वो एसिड, इट मीन्स दैट NH4 प्लस इज एसिड। और OH माइनस एक्सेप्टिंग H एंड प्रोड्यूसिंग H2, तो जो एक्सेप्ट कर रहा है वो बेस, मतलब ये हो गया बेस। फॉरवर्ड रिएक्शन में अलग है और बैकवर्ड रिएक्शन में अलग है, तो NH4 प्लस क्या हो गया, दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस। इन फॉरवर्ड रिएक्शन दिस इज बेस, this base is producing the compound or ion which act as a acid in backward reaction, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, this NH3 and NH4 plus, these are conjugated acid base pair, इनको क्या बोलते हैं, conjugated acid base pair, H2O and OH minus ion, so these are the conjugated acid base pair of each other। ये इस लोरी प्रोस्टेट थ्योरी में जैसा हम इसमें एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं, जैसा बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा समझ लो, जैसे HCl प्लस H2O, अनदर एग्जांपल वी आर टेकिंग। ये दूसरे एग्जांपल में क्या हो रहा है, ध्यान देखो जरा, दिस Cl इट प्रोड्यूस Cl माइनस, H इसको दिया, सो इट प्रोड्यूस H3O plus. Okay, so see this HCl donating electron means releasing electron, so this is acid, and when released it produces Cl. In backward reaction Cl is accepting electron, it means it is base, means both are conjugated acid base pair. Now what about here, water here? What is the role of water? Water produce H3O plus means accepting electron, so accept electron it means it is base here and produce H3O plus, in backward reaction H3O donate electron or release electron, so it is acid, means these are conjugated acid base pairs. Another theory is Lewis theory, आप लोग इसको बोलते समय लिवाइस थ्योरी भी बोलते हैं कोई कोई प्रोनाउंसिएशन में, सो GN लिवाइस और लेविस, इन्होंने एक बहुत बढ़िया आइडिया बताई, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन द एसिड एंड बेसिस विदाउट द नॉलेज ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस। H प्लस आयन OH माइनस की कोई आवश्यकता नहीं है। लेविस ने क्या बताया, इनका क्या कहना है, बहुत ही इजी काम है, आपको सिर्फ उस मोलेकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान देना है, उस मोलेकुलर स्ट्रक्चर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर में कितने इलेक्ट्रॉन्स कम है या कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगा, वो खाली भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनके पास, या तो फिर इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। बस ये कंसेप्ट थोड़ा सा अपने समझ में आ गया तो अपने को ये लेविस एसिड बेस थ्योरी समझ में आती है। मैं आपको दो चार एग्जांपल वन स्ट्रोक में पहले बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। जैसा NH3 H2O AlCl3 PCl5, ये जैसे एग्जाम्पल्स है। इन एग्जाम्पल में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये देखो नाइट्रोजन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं, यहां पर ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, AlCl3 एल्यूमिनियम के सराउंडिंग में 3 ही Cl है,
यानी स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो गया, Al ऐसे, Cl Cl Cl, इसलिए ये डायमर फॉर्म में मिलता है हमेशा। तो ये ऐसा रहता है Al, ये Cl Cl और ये Cl ऐसे। BeCl2 का स्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। PCl5 का स्ट्रक्चर देखेंगे ऐसा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये स्ट्रक्चर होगा Cl 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 Cl। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स है, वो दे सकता है, और कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन कम है, बोले। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, BF3 FF। हमको पता है देयर इज द ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग whenever the compound form from the different atoms, the outermost shell of that particular atom should contain at least 8 इलेक्ट्रॉन। एक तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, बाहर की कक्षा पूरी भरी होनी चाहिए, तो वो स्टेबल माना जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस वेयर इट इज शोन दैट कि वो कंपाउंड स्टेबल है। जैसा NH3, 3 ही बॉन्ड दिखते हैं ना, अगर देखेंगे तो ऐसा नजर नहीं आता अपने को, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 ही बॉन्ड है, तो सराउंडिंग में देखेंगे तो 3 ही बॉन्ड दिखते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 8 है, ये हर एक बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 और 2 8, तो यहाँ 8 हो गए। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हैं? यहाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कितने हैं? यहाँ तो ज्यादा है। यहाँ कितने हैं? वाटर के पास मॉलिक्यूल जो है स्टेबल मॉलिक्यूल, लेकिन इसके पास में ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। In such situation, the compound which donate means donate electron is base। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस, और जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इज एसिड। इसमें सिंपल आप ये ध्यान में रख सकते हैं, एक्सेप्ट एसिड, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एसिड, तो आपको इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, EAA इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट एसिड। और ये अपने आप दूसरा याद रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट बेस। इतना ध्यान रखना है आपको। नाउ यू टेल मी, दिस इज द बेस, दिस इज आल्सो शोइंग बेसिक कैरेक्टर्स, दोनों बातें हैं। लेकिन H2O के पास इलेक्ट्रॉन है, दोनों मॉलिक्यूल न्यूट्रल है ना, उसके ऊपर कोई चार्ज, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो समवेयर वाटर एक्ट एज ए बेस, वैसे भी हमने पहले वाले इसमें भी देखा है, ठीक है। AlCl3 लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज आर द इलेक्ट्रॉन रिच, दिस इज इलेक्ट्रॉन रिच, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है बाहर, तो इलेक्ट्रॉन रिच मतलब इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, दीज आर द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स आर लेविस एसिड, दीज आर लेविस एसिड, और इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल आर द लेविस बेस। द नेक्स्ट टॉपिक इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करके लिखा था ना लास्ट टाइम, दैट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहाँ आयोनाइजेशन हो रहा है तो आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखें तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट हो गया। अगर वाटर है, पानी का एक आयोनाइजेशन होगा, यू नो दैट वाटर कंटेन बोथ द कंपोनेंट H+ एंड OH- आयन, तो H+ भी बना OH- आयन, बहुत बार लिखा जाता है, उसको बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट, बट दैट इज नोन एज आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। मैं पहले हेडिंग लिखता हूं आयोनाइजेशन कांस्टेंट, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। This is also, we can say that equilibrium constant, but this equilibrium constant in case of ionization, so it is known as ionization constant. If you take the example of water, we know that H2O it produce H+ and OH- आयन, लेकिन लिखते समय कोई ऐसा नहीं लिखते इसको, इसको लिखते हैं H2O
प्लस, इसको लिखते हैं H2O प्लस H2O, इट प्रोड्यूस H प्लस को एक H2 के साथ जोड़ देते हैं H3O प्लस और OH माइनस, ऐसे लिखते हैं। H प्लस एक्चुअली डज नॉट एग्जिस्ट ऐसा, सो दैट इज इन कॉम्बिनेशन ऑफ H2O। तो कोई भी रिएक्शन हो, लेकिन हमें समझने के लिए ये अच्छा है, आपको समझने के लिए ये अच्छा है, लेकिन ये ध्यान रखना जब भी H प्लस लिखना हो H3O प्लस लिखना। अगर इसको हम लेते हैं, सो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर दिस रिएक्शन? द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion and concentration of OH minus ion upon the concentration of H2O. वाटर का कॉन्सेंट्रेशन H2O का कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी तो 1 रहेगा, वो इसको लिखते समय हम लिखेंगे सीधा सीधा H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन। बहुत सारे जगह आपको ऐसा नहीं लिखा दिखेगा, ये लिखा दिखेगा आपको H3O प्लस एंड OH माइनस आयन। बिल्कुल कहीं कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ये दे लिखेंगे तो ऐसा होगा, ये लिखेंगे ऐसा, बट these are the ions, so that is known as ionization constant. But these are the product of the ions of water, so that's why that is known as ionic product of water, H plus and OH minus. So this is the ionic product of water. कहीं भी अगर कोई नॉर्मल न्यूट्रल सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर लेते हैं, दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन दैट इज इक्वल टू 1 into 10 to the power minus 7, and H plus ion concentration and OH ion concentration is again same, so the OH ion concentration is also same, and this is also equal to the OH minus ion concentration. अब दो का कॉन्सेंट्रेशन है तो यहाँ लिखते समय 10 to the power minus 7 into 10 to the power minus 7, तो कितना हो जाएगा 10 to the power minus 14, ये हो जाएगा 10 to the power minus 14। तो ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग जनरली किसी भी सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हम पता कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर हमारे को पता है तो उसके आधार से according to by knowing the H plus ion concentration we can classify the solution into different category, whether that is acidic, that is basic or neutral solution। जहां पर H plus ion का concentration ज्यादा है OH minus ion के concentration से, या फिर OH minus ion का concentration ज्यादा है H plus ion के concentration, या फिर H plus ion का concentration और OH minus ion का concentration ये दोनों सेम है। क्या सोचते हैं हम इसके बारे में? जहां पे H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो सॉल्यूशन एसिडिक होगा ना, जहां OH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो बेसिक होगा ना, और जहां दोनों बराबर है वो सिंपली न्यूट्रल होगा। बस ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज pH ऑफ द सॉल्यूशन। दिस इज वन टर्म, और 10th में pH स्केल दी हुई है, लेकिन उसका एक्चुअली क्या है, वो pH क्या है? pH इज व्हाट? pH इज द नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, या हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी बोल सकते हैं H3O+ एंड टू द बेस 10, इसका बेस 10। इसमें आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है कि H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन नॉर्मली होता है 1 into 10 to the power -7, ओके, और सेम OH आयन का भी कंसंट्रेशन होता है 1 into 10 to the power -7। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन किया था, ओके। किसी भी जैसा HCl में अगर उसकी मोलरिटी 10 to the power, इफ एग्जांपल if HCl is there and the concentration is -2, 10 to the power -2 मोलर, ऐसा है, तो उसका जो pH होगा, so the pH of the solution that is equal to 2। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। pH of the solution is 2। और अगर कोई NaOH है, जैसे मान लो NaOH का अगर 10 to the power मान लो 4,
OH है यहाँ पर, वी नो दैट H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दोनों को मिला के होता है 10 टू पावर -14। क्या करना है हमको, 10 टू पावर माइनस, ये माइनस होना चाहिए, तो ये 14 - 4 करेंगे तो यहाँ पर आएगा pH 10। ये थोड़ा ध्यान देना है, ठीक, थोड़ा सा ध्यान देना है इसको आप लोगों। इसमें क्या है, इसी कैलकुलेशन को ध्यान में रखते हुए जितना भी कॉन्सेंट्रेट, बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल्स भी दिखेंगे आपको, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत सारा कैलकुलेशन होता है, कहाँ उतना सॉल्व करते रहते हैं, इतना नहीं समझ में आता है। अगर आपको इतना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं तो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के पावर के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। जितना पावर H प्लस का, जितना पावर H प्लस का उतना ही pH, और OH माइनस का जितना पावर वो 14 में से माइनस कर दो, 14 में से उसको माइनस कर दो, यानी OH माइनस आयन का -2 है तो pH कितना होगा, 12 होगा। गॉट इट। तो ये थोड़ा सा इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, इसलिए ये सब कैलकुलेशन करने के बाद में अपने को दिखता है pH ऑफ एसिड इज 1 to 7, pH of base is 7 to 14। अब ये 7 जहां कॉमन आया तो 7 और 8 इसके बीच वाला जो पोर्शन, यानी इधर से 7 लिया, इधर से 8 लिया, तो जो 7 वाला जो पोर्शन है, 7 pH, 7 नॉट 8 नहीं, 7 ग्रीन कलर ही आता है उसका भी pH इसमें, 7 दैट इज द pH ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन। याद रख सकते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको, बहुत सारे कैलकुलेशन दिखेंगे, बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन आप करके देखोगे तो भी आ जाएगा, लेकिन जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में 1 मिनट के अंदर हमको सॉल्व करना है, और बनाने वाले, क्वेश्चन बनाने वाले भी वो ऐसे ही बनाते हैं कि हम 1 मिनट में सॉल्व कर सकें, तो मैक्सिमम 90%, मोर देन 90% आंसर्स में पावर का कॉन्सेंट्रेशन को आप लोगों को ध्यान रखना है। अब ये pH की एक स्केल होती है ऐसी, जहां पे यहाँ न्यूट्रल है 7, यहाँ 1 है और यहाँ 14 है, यहाँ होता है एसिड और यहाँ होता है बेस, यहाँ होता है न्यूट्रल। छोटे बच्चों को हम बोल सकते थे A and B, 1 से 14, कोई खास तो है नहीं, इसको याद रख सकते हैं। सॉल्यूशन को जब भी pH मेजर करना है तो कोई कंटेनर में अगर वो सॉल्यूशन है तो हमारे पास एक pH की स्ट्रिप होती है, pH की स्ट्रिप इसमें ऐड करना है, जो भी pH की स्ट्रिप का कलर यू हैव टू मैच है, इसको यहाँ मैच करेंगे, वो एसिड है कि बेस है अपने को पता चल जाएगा। सो इट्स वेरी सिंपल, कोई टेंशन लेने वाला काम नहीं है।